Hello students, you are most welcome on Digital Maths. See, again we are in front of you with class 8 chapter number 2, that is linear equation in one variable, exercise 2.2. See, before this you have gone through exercise 2.1. If you have not gone through exercise 2.1, I will request you please go and refer exercise 2.1, क्योंकि अगर आपने एक बार exercise 2.1 समझ ली then this exercise would be bit easy, because इस exercise के अंदर all the concepts of exercise 2.1 is used, and main thing is this exercise is totally based on word problems. So before word problems you should understand the concepts. So concepts clearing will be done in 2.1. यहाँ पे भी होगा, no problem, but जो basic easy चीजें हैं वो सारा वहाँ पे हो रहा है. So you should just go through it. If done, then you can follow. We can continue with the new exercise 2.1. Question number 1. See, first of all, please try to understand the question first, then we will go for the solution. Okay, see, if you subtract half from a number, and multiply the result by half, you get 1/8. what is the number? सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझो, मैं सीक्वेंस में बताऊंगा, बट सी, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, मीन्स चलो नंबर हमको पता नहीं है तो हम नंबर को ले लेते हैं x, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यू कैन टेक x, v, u, w, p, a, b, c, d में से कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको x ही लेना है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो लेट द नंबर बी x. अब उन्होंने क्या बोला है, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ, मीन्स हमको हाफ उसमें से माइनस करना है. ओके, कर दिया. फ्रॉम अ नंबर एंड, अब हाफ सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हाफ मल्टीप्लाई द रेस्ट बाय हाफ, मींस व्हाटएवर द आंसर वी आर गेटिंग, हाफ सब्ट्रैक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई इट विद द हाफ, यू गेट, मींस अगर नंबर में से मैं हाफ माइनस करता हूं और उसको हाफ मल्टीप्लाई, मींस व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग हाफ अगेन आफ्टर सब्ट्रैक्शन, सो आई गेट, मींस वी गेट द आंसर 1/8. so this is your equation. Now one by one we will be solving this equation, but before that, how to write you should be aware. So first of all, move ahead. Solution, let the number be p. I am taking here the variable p. Clear? The number be p. Now according to the question, when I told p minus half, clear, and multiply by half, we get 1/8, that I have already explained. So according to the question, p minus half into 1/2 equals to 1/8. Now how you will solve this? P minus 1/2 into half equals to 1/8. See, first and the foremost thing, you have to take out this 1/2. आपको 1/2 निकालना है. So what you will do? Multiply both the side with 2, because it is in division. 1/2 it is. So multiply the equation both the side, clear, by both the side by 2. Here it is division, it is not division, it will be multiplication. Clear? See, so p minus 1/2 into 1/2 means dividing by 1/2 means multiplying by 2. You can here write as well, multiply by 2. Dividing by 1/2 or multiply by 1/2, that is the same thing. So here what we will do, multiply by 2 means division by 1/2 or multiply by 1/2, we can say. Clear? You can see here, half divide by half, 1/8 divide by half. When we divide by half, okay, what will happen? Next step, it will convert into multiplication, that is inverse everything. So into 2/1 into 2/1. Clear? So now the solution becomes p minus 1/2 into 1/2 into 2/1 equals to 1/8 into 2/1. Now 2 cancel, and here 2 1s are 2, 2 4s are 8. So answer becomes p minus 1/2 equals to 1/4. This will be your answer. Next, now still steps are left, but this much you will get. P minus 1/2 equals to 1/4. Clear? Now what we will do? Adding, see here minus 1/2 is there, so adding half both the side. By adding half both the side, we get p minus 1/2 plus 1/2 equals to 1/4 plus 1/4. So here it would be cancelled,
minus 1 by 2 plus 1 by 2 would be cancelled. So P equals to 1 by 4 plus 1 by 2. If you take the LCM, 4 is the LCM, so 1 upon 4 plus 2 upon 4, because if to make it 4 we have to multiply दोनों जगह, ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से multiply करेंगे, so we will get 2 upon 4. Now 4 is common, so 3 upon 4. So P equals to 3 upon 4. So we will get P equals to 3 upon 4. Therefore the number is 3 upon 4. यानी जो नंबर हमको ढूंढने को बोला था, what is the number? Therefore the number is 3 upon 4. This was your first question. Please try to understand the question first and one by one follow this step. Whichever steps I am telling, follow one by one, you will surely get the answer. Just but one by one step must be required. Clear? Question number 2. The perimeter of rectangular swimming pool is 154 meter. The length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? See, first of all, what it is given. See, perimeter we are knowing that perimeter is given 154, that we will consider later. Its length is 2 meter more than twice its breadth. So first of all, let the breadth be 2 meter. Suppose we are taking breadth as 2 meter. So length is given, length is 2 meter more than twice its breadth. मतलब 2 meter more than twice its breadth, मतलब जो breadth है, suppose we are taking breadth as B, so it is 2 meter more than twice. Twice का मतलब double, जो breadth है उसके double से भी 2 meter ज़्यादा है. Its length is 2 meter more, मतलब 2 मीटर ज़्यादा है. किससे? डबल द ब्रेथ. ट्वाइस इट्स ब्रेथ मीन्स उसको डबल करने के बाद भी +2 ज़्यादा है. सो लेंथ हमारा ये होगी 2b plus 2, सॉरी 2b plus 2 हो गया हमारा. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ऑलमोस्ट, बिकॉज बार बार यूज होता है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 in bracket length plus breadth. अब perimeter of rectangle कितना दिया हुआ है? 154. So our implies 154 equals to 2 in bracket, पहले length की वैल्यू, length क्या है? 2b plus 2. So मैंने लिख दिया 2b plus 2 and breadth is b. So writing b. Clear? इसको solve करेंगे. So 154 equals to 2 in bracket 3b, because 2b plus b, 2b plus b is 3b plus 2. Clear? Now see, here 2 is in multiplication, so we have to divide by 2 both the side. So 154 मैंने multiply कर दिया है, so 154 equals to 6b plus 4. Now 154 equals to 6b plus 4. So both side we will subtract -4 both sides. So -4 here also, -4 here also. तो ये तो cancel हो गया. But here it would be 150 equals to 6b. Clear? तो पहले यहाँ तक चलते हैं. By subtracting from 4 from both the side, we get 154 minus 4, 6b plus 4 minus 4. So 150 equals to 6b. 150 equals to 6b. Now 6, see here 6 is in the multiplication, so we have to divide 6 both the side. After dividing both the side by 6, we get 150 upon 6 equals to 6b upon 6. So b equals to 25. सी इंटरचेंजिंग पार्ट मैंने पहले ही कर दिया. 6 आप डिवाइड करके देख लेना. 25 इक्वल्स टू बी आई गॉट. सो आई इंटरचेंज इट डायरेक्टली. आप भी कर सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी कि नहीं करना है. क्लियर? नाउ व्हाट हैपन? सो लेंथ इक्वल्स टू 2b plus 2 इक्वल्स टू 50. 2 into 25 is 50, क्योंकि हमने रखा 2 into 50 plus 2. तो 2 into 25, सॉरी 2 into 25 that is 50 plus 2 that is 52. तो आपका ब्रेथ हो गया 25, लेंथ हो गया 10. ब्रेथ इक्वल्स टू 25 मीटर एंड लेंथ इक्वल्स टू 52 मीटर. हर एक चीज़ को किस तरह से लिखना है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ है. यू कैन नोट इट डाउन. आप अपने बुक में लिख सकते हो, फिर खुद प्रैक्टिस भी करो. जस्ट कॉपी पेस्ट मत कर लेना, कैलकुलेशन आपको भी करनी है. सो स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू इट, ईच एंड एवरी पार्ट. कहाँ मैंने क्या किया है उसके अकॉर्डिंग आप भी करो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देखो, फिर बंद करके बिना देखे ट्राई करो. फिर नहीं समझ में आता है वापस चेक करो. देन यू विल श्योरली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, मूविंग. द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्लियर? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 by 2.
4 2 by 15. What is the length of either of the remaining equal side? क्लियर, जो भी दो साइड बची है, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको पता है दोनों साइड सेम होता है, सो ए क्लियर, एंड 4 2/15 पेरीमीटर दिया हुआ है और बेस की साइड दी हुई 4/3. लेट द टू साइड्स बी ए, मैंने जो लिखा हुआ है क्लियर, बेस इक्वल्स टू 4/3, बेस इज 4/3 and side is a, clear. We know the perimeter of isosceles triangle equals to 2 into equal side plus base. Obviously बात है, perimeter क्या होता है, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, तीनों साइड्स का एडिशन होता है और दो साइड्स इसकी इक्वल है, सो 2 into equal side plus base. So 2 perimeter we have been given 4 2/15, आपको perimeter दिया है 4 2/15. इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या करोगे, 15 4 जा 60 प्लस 2, तो 62/15 आपका आएगा पेरीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 2 into इक्वल साइड, तो यानी 2a आ गया, प्लस बेस मीन्स 4/3. सो हमको जो ये मिला 4 2/15 का हमको मिलता है 62/15 दैट वी आर प्लेसिंग ओवर हियर, दैट इज इक्वल्स टू 2a प्लस 4/3. क्लियर, सी 4/3 हियर प्लस में है तो वी हैव टू सबट्रैक्ट इट. So by subtracting 4/3 from both the side we get, by subtracting 4/3 from both the side we get 16/15 minus 4/3 equals to 2a plus 4/3 minus 4/3. So now 4/3 will be cancelled, so we will get 2a equals to, अब यहाँ पे जो है LCM लेना पड़ेगा, so कैसे लेंगे, 62/15 minus 4/3. क्लियर, यहाँ पे तो 2a आ गया, क्लियर, यहाँ पे आपको 2a क्लियर दिख गया कि यहाँ पे 2a है, ऑब्वियस सी बात है, बट दैट साइड वी हैव टू टेक द एलसीएम, सो एलसीएम वुड बी टेकन 62/15. सो 15 और 3 का अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग, 15 और 3 का एलसीएम, सो 15 and 3 एलसीएम वुड बी 15 इटसेल्फ. 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 खुद होगा, सो 62/15 इक्वल्स टू सॉरी माइनस 4/3. अब 3 को 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, हियर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट वुड बी 62/15 minus 20/15 बिकॉज 4 5 are 20. सो यहाँ पे आ जाएगा 62/15 माइनस, क्योंकि दोनों में 15 था, माइनस 20, सो आंसर वुड बी 42/15. इसको और सिंप्लीफाई करें तो 3 5 are 15 and 3 14s are 42, so 14/5. so check करते हैं, so here subtracting 4/3 we get 2a equals to 62 minus 20/15, that is 42/15 equals to 2a, that is 14/5 equals to 2a. जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि इसको एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम हैज टू बी टेकन प्रॉपर्ली, वो आपको ध्यान रखना है. वापस एक बार मैं बता देता हूँ, पर see 15 would be the LCM, so आपको 15 बनाना है, so it would be multiplied by 5, this would be also multiplied by 5, so it would be 62 minus 20/15, so 62 upon minus 20, that is 42/15, so 3 14s are and 3 5s are, so 14/5 आंसर आएगा जो हमने यहाँ पे देखा, 14/5 equals to 2a. Now here 2 is in multiplication, so after dividing both side by 2 we get 14/5 into 2 and 2a/2, तो 2a/2 cancel and 2 7s are 14, तो here a की वैल्यू जो आपको मिलेगी that would be 7/5. उसको और अगर आप नॉर्मली करते हो तो 7/5 means 5 1s are 5 तो 2, so answer would be 1 2/5. so a की वैल्यू मिल गई, a equals to 1 2/5. therefore length of the equal side of triangle is 1 2/5 centimeter. क्लियर है, समझ में आया, हर एक स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से करेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी. क्लियर, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, वी विल गेट क्वेश्चन नंबर 4. देखो कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट, आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर इज 95, सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है उनका सम 95 है. इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर, यानी सपोज एक नंबर हमने ले लिया x, तो दूसरा क्या बोला है, इफ वन एक्सीड्स अदर बाई 15, मतलब दूसरा जो नंबर है वो 15 ज़्यादा है, सो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा x + 15, और दोनों का एडिशन क्या बोला है, दोनों का एडिशन 95, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 95.
सो इट वुड बी 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। अब क्या करना है, अब तो आपको भी पता होगा किस तरह से हमको करना है। प्लस 15 है तो -15 दोनों साइड करेंगे, यहाँ पे भी -15, यहाँ पे भी -15, सो ये कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं वन बाय वन। लेट नंबर 1 इक्वल्स टू a, नंबर 2 इक्वल्स टू a प्लस 15, क्योंकि इफ 1 एक्सीड्स द नंबर बाय 15, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, सो 95 इक्वल्स टू a प्लस 15, क्योंकि नंबर 1 आपका a है, नंबर 2 a प्लस 15 है, implies 2a plus 15. Now what we will do is subtract 12 both the side, subtract 15 both the side. We have 15, so subtract 15 both the side. By subtracting 15 both the side, we get 95 minus 15 equals to 2a plus 15 minus 15. देखो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 95 minus 15 means 80 equals to 2a आ जाएगा, 80 equals to 2a, sorry, so 80 equals to 2a। अब क्या, now dividing, क्योंकि 2 multiplication में है, so we have to divide, so after dividing both side by 2 we get 80 by 2 equals to 2a by 2, so 80, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 40 से 80 होता है, आप खुद जानते हो 80 है, डिवाइड करोगे 2 से तो 2 4 जा 8, 0 बचा तो 0, तो 2 40 जा, सो a equals to 40, यानी आपको एक नंबर मिला। सेकंड नंबर 1 a equals to 40, नंबर 2 a plus 15 मीन्स 40 plus 15 होता है 55। सो आपके दोनों नंबर्स आपको मिल गए 40 एंड 55, और दोनों का एडिशन चेक कर लो, अगर चेक करना हो तो 40 plus 55 कितना होता है, 40 plus 55 is 95। सो आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Two numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18, दोनों का डिफरेंस, differ by 18 मतलब दोनों में डिफरेंस जो है 18 का है। What are the numbers? See first of all let number 1 equals to 5a, क्योंकि दोनों इन्होंने बोला हुआ सीरीज में है, numbers are in ratio 5:3, एक को मैंने ले लिया 5a, नंबर 2 equals to 3a। अब डिफरेंस इज गिवन 18 मीन्स ऑब्वियस ही बात है बड़ा नंबर 5a है, तो 5a minus 3a ही 18 होगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, जो भी बड़ा लगे उसके हिसाब से चलना है। सो 18 इक्वल्स टू 5a minus 3a। अब 5 minus 3 कितना होता है 2, और a है, सो 18 इक्वल्स टू 2a। अब 2 जो है a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड 2 बोथ द साइड। So after dividing both side by 2 we get both side, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 18/2 equals to 2a/2, so 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 9 से 18, so 9a equals to 9। so first number equals to 5a, 5a means 5 into 9 that is equals to 45, और second number क्या है 3a, तो 3 into 9 equals to 27, so second number 3a that is equals to 27। हमारे दोनों नंबर्स मिल गए हमको। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं है? ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी खुद से। जस्ट मेरे बताने से आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया, ये कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। सो एक एक चीज़ समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तो यू विल श्योरली गेट दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? 3 consecutive integers, पहले वो समझो। 3 consecutive integers मतलब 1 by 1 आने वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये तीनों नंबर 1 by 1 एक साथ आ रहे हैं, तो उनको consecutive integers बोलेंगे। आप देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 minus 2 1 का डिफरेंस, 2 minus 1 1 का डिफरेंस। सो ये डिफरेंस होते हैं 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में। अब हमको पता नहीं कौन से नंबर्स के तीनों का एडिशन करेंगे 51, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द नंबर बी x, फर्स्ट वाला नंबर, दूसरा वाला नंबर क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है x प्लस 1, उसके बाद वाला नंबर क्या होगा x प्लस 2। सो ये हो गए हमारे तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो हमको नहीं पता है, x प्लस 1 x प्लस 2।
अब इस चीज को ऐड करेंगे तीनों को तो आंसर आएगा 51. सो लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी x, x plus 1, x plus 2. According to the question, number sum equals to number 1 plus number 2 plus number 3. क्योंकि बोला हुआ है add up to 51. So 51 equals to x plus x plus 1 plus x plus 2. So 51 equals to देखो 1x, 2x और 3x, 3x तो 3x, 1 plus 2 means 3. क्लियर? नाउ प्लस 3 है यहाँ पे. अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए. प्लस 3 है तो क्या करना है? वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ द साइड. बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ द साइड वी गेट 51 minus 3 equals to 3x plus 3 minus 3. ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा. 51 minus 3 means 48 equals to 3x. अब क्या? अब आपको now you have to divide because here in 3x is in multiplication, so you have to divide by 3. So after dividing both the side by 3 we get 48 upon 3 equals to 3x upon 3. अब 48 को आप 3 से डिवाइड करो, जैसे भी चाहो वैसे करो. 3 1 जा 3, 1 8, 3 6 जा 18. क्लियर? सो 16 आंसर आएगा. सो x इक्वल्स टू 16. सो आपके नंबर्स फर्स्ट नंबर तो x इक्वल्स टू 16 हो गया. सेकेंड नंबर जो था x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 17. थर्ड नंबर जो था x प्लस 2 दैट इज 18. इन तीनों का एडिशन करोगे आपको तो 51 मिलेगा. वो आप चेक कर सकते हो. क्लियर? देयरफॉर द नंबर्स आर x इक्वल्स टू 16, x प्लस 1 इक्वल्स टू 17 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 18. तीनों के तीन नंबर्स आपको मिल चुके हैं. क्लियर? अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास. हर एक चीज़ को समझना सीखना. कहीं पे भी डाउट हो पॉज कर सकते हो. आप मोबाइल आपके हाथ में, जहाँ पे भी रुकना है रुक जाओ. क्लियर? और देखो क्या चीज़ थी, क्या चीज़ समझ में नहीं है समझो, फिर उसके आगे बढ़ो. द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8 इज 888. फाइंड द मल्टीपल्स. भाई 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8. अब ये याद रखना है 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8. तो पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे 3 consecutive नंबर हमने लिया था x, x प्लस 1, x प्लस 2. अगर मैं तीनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ जस्ट, तो मेरे 3 consecutive नंबर्स हो गए जो मल्टीपल ऑफ 8 हो. ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हर एक नंबर एक 1 से बढ़ रहा है. सो हम लोग लेंगे हमारे 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 दैट इज 8x, 8 इन ब्रैकेट x प्लस 1, 8 इन ब्रैकेट x प्लस 2. और तीनों का सम क्या बोला हुआ है? 888 मीन्स 888 बोला हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3. सो सम क्या है हमारा? 888 दैट इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8 इन ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इन ब्रैकेट x प्लस 2. अब पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग. ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा? 888 इक्वल्स टू 8x पहले. अब 8 इंटू एक्स प्लस 1 यानी प्लस 8x प्लस 8. फिर 8 इंटू एक्स प्लस 2 मीन्स प्लस 8x, 8 टू ज़ा 16. सो ये आपका हो गया. इसके बाद क्या? सो 888 इक्वल्स टू 8x प्लस 8x 16x, 16x प्लस 8x मीन्स 24x. तीनों को ऐड कर दिया. प्लस 8 प्लस 16 कितना होता है? 24. तो ये आपका आंसर आएगा इतना 888 प्लस 24x प्लस 24. देखते हैं कैसे. मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16. सो उन सब को ऐड करेंगे तो 24x प्लस 24 जो मैंने आपको बताया था 888 इक्वल्स टू 24x प्लस 24. अब क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस 24 है हमारे वेरिएबल के साथ. तो हियर वी आर सब्ट्रैक्टिंग 24 बोथ द साइड. बाय सब्ट्रैक्टिंग 24 बोथ द साइड वी गेट 888 माइनस 24 इक्वल्स टू 24x प्लस 24 माइनस 24. तो ये तो कैंसिल हो गया. फिर 888 माइनस 24 आप करोगे तो आपको मिलेगा 864. क्लियर? सो 864 इक्वल्स टू 24x. अब क्या? यहाँ पे 24x मल्टीप्लिकेशन में है. 24 इज इन मल्टीप्लिकेशन. सो वी विल बी डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 24. वी गेट
864 अपॉन 24 इक्वल्स टू 24x अपॉन 24, सो x इक्वल्स टू 36, यानी x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 36। अब आपको तीनों मल्टीपल्स ढूंढने हैं। सो मल्टीपल्स क्या होंगे, एक तो होगा पहले 8x यानी 8 इंटू 36, फिर 8 इंटू 37 क्योंकि x प्लस 1 यानी 37, 8 इंटू 38, तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। मैंने किया हुआ है, सो मैं तो आपको आंसर बता दूंगा, बट मल्टीप्लाई खुद ट्राई करके चेक कर लेना, शायद गलत हो मेरा। देखो भाई जरूरी थोड़ी ना सही हो सकता है, सो प्लीज चेक इट आउट। सो देयरफॉर द नंबर आर 8x इक्वल्स टू 288, 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 296, 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 304। जो x है 36 है तो x प्लस 1 हो जाएगा 37 और x प्लस 2 हो जाएगा 38। ये आपको इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है 8 को। मल्टीप्लिकेशन आप करना प्लीज, हाँ रिक्वेस्ट। मैंने तो ऑलरेडी करके आंसर रखा है, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट आउट ताकि आपको समझ में आए। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर, एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers। देखो इन्होंने क्या बोला है, वापस consecutive numbers, तो numbers तो वही लेंगे x, x plus 1 और x plus 2। उन्होंने क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग तीनों को, एक को 2 से मल्टीप्लाई करें, एक को 3 से मल्टीप्लाई करें, एक को 4 से मल्टीप्लाई करें और सबका एडिशन करें, प्लस करें, तो हमें आंसर मिलेगा 74। ओके कोई बात नहीं, मिलेगा तो मिलेगा। हमको तीनों नंबर्स ढूंढने हैं कि x प्लस 1 और x प्लस 2 कौन कौन से हैं। ठीक, सो अगर 2 इसको सॉल्व करता हूँ तो 2x, और ये अगर हम लोग करें तो 3x प्लस 3 और प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 74। आप बोलोगे ये कैसे आया, तो देखो 2 को मैंने पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 3 आया, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x आया, 4 इज मल्टीप्लाइड विद 2 देन वी गेट प्लस 8। सो ये मिला। फिर उसके आगे सॉल्यूशन हमको करना होगा। 2x प्लस 3x मीन्स 5x, 5x प्लस 4x मीन्स 9x प्लस 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 कितना होता है 11 इक्वल्स टू 74। बस यही चीज़ हमको, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लेट 3 consecutive number be x, x plus 1, x plus 2. According to the question, sum equals to 2 into number 1 plus 3 into number 2 plus 4 into number 3। इन्होंने बोला है मल्टीप्लाई करना है 2, 3, 4 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमने नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नंबर 2 को 3 से और नंबर 3 को नंबर 4 से। तो सम यानी 74 हमको दिया हुआ है 74 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर, सो 74 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 3, क्योंकि 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। 4 इंटू एक्स इज 4x और 4 इंटू 2 ज़ा 8। अब सबको ऐड कर दो तो 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x 9x जो मैंने बताया था। 74 इक्वल्स टू 9x, 3 प्लस 8 होता है 11। क्लियर, अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड बाय 11 वी गेट 74 माइनस 11, 9x प्लस 11 माइनस 11, तो प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल और 74 माइनस 11 दैट इज 63 इक्वल्स टू 9x। 63 इक्वल्स टू 9x। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, आपको डिवाइड बाय 9 बोथ द साइड। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 9 बोथ द साइड वी गेट 63 अपॉन 9 इक्वल्स टू 9x अपॉन 9, सो x इक्वल्स टू 7। यानी आपका एक नंबर हो गया 7, दूसरा x प्लस 1 यानी 8, x प्लस 2 यानी 9, तीनों के 3 नंबर हो गए 7, 8, 9। उसको आप लाइन से 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यू विल गेट 72। यू कैन चेक इट आउट। वैसे चेक करने को बोला नहीं इसलिए हम लोग नहीं कर रहे, बट यू कैन चेक इट आउट। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो यू कैन वेरीफाई। क्लियर, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 समझे। The ages of Rahul and Harun are in ratio 5:7. 4 years later, the sum of their age will be 56. What are their present age? देखो उन दोनों की जो अभी की एज है, प्रेजेंट एज, वो रेशियो 5:7। तो सिंस
एजेस आर इन रेशियो 5:7, तो लेट राहुल एज बी 5x एंड हरुण एज बी 7x। हमने क्या किया, राहुल की एज ले ली 5x, क्योंकि किस रेशियो में वो पता नहीं, खाली 5:7 दिया है बट एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, तो वी आर टेकिंग 5x और हरुण की एज 7x। अब आप बोलोगे क्यों लेते हैं, तो देखो 5x अगर है अपॉन में 7x है, तो ये अगर कैंसिल हो जाता है तो रेशियो तो 5:7 ही मिलता है ना, इसीलिए हम लोग x ले लेते हैं दोनों के साथ वेरिएबल। 4 years later the sum of their age will be 50। 4 years later मतलब 4 साल बाद, so after 4 years राहुल एज will be 5x plus 4, क्योंकि अभी की प्रेजेंट 5x है। जैसे सपोज अभी अगर आप 12 years के हो तो 4 साल बाद कितने होंगे, +4 यानी 16 years। उसी तरीके से राहुल अभी 5x का है तो 4 साल बाद कितना, 5x plus 4। सिमिलरली हरुण इज 7x, तो आफ्टर 4 years he will be 7x plus 4। क्लियर। नाउ व्हाट इज सेड, अगर दोनों का सम किया जाए 5x plus 4 and 7x plus 4, the answer would be 56। So according to the question, the sum of age of Rahul and Harun after 4 years equals to 56। So 5x plus 4, 7x plus 4 equals to 56। अब 5x और 7x जो x वाले वेरिएबल है उनको ही ऐड करना है, आप सब लोग एक साथ ऐड नहीं कर सकते, ये चीज खास ध्यान देनी है। whichever the term is of x वो सारा साथ में ऐड होगा, बाकी बिना x वाले ऐड होंगे। सो 5x plus 7x होता है 12x और 4 plus 4 is 8 equals to 56। अब इसके बाद क्वेश्चन इक्वेशन देखा होगा तो इसके बाद आपको समझ में आ गया है कि आपको करना क्या है। See here plus 8 is there with 12x, so after transposing 8 to the RHS, अब हम लोग क्या करें, एक नया मेथड, डायरेक्टली 8 को राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में ले जाने से क्या होगा, जो प्लस साइन, ये चीज याद रखना, सपोज इक्वल टू साइन के प्लस साइन इधर है तो इक्वल टू साइन के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। अगर माइनस है तो इक्वल टू साइन की उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। अगर डिवीजन है और इक्वल टू साइन के उस तरफ जाता है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। दिस कंसेप्ट शुड बी क्लियर। इक्वल टू साइन में वाइस वर्सा हो जाता है, ये याद रखना है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, ये चीज आप याद रखो। तो यहाँ पे प्लस 8x था, वो उस तरफ जाएगा RHS में तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8। सो 56 माइनस 8 क्या होता है, 12x इक्वल्स टू 48। अब डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 12, क्योंकि यहाँ पे 12x था, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 12 वी गेट 12x अपॉन 12 इक्वल्स टू 48 अपॉन 12। देखो 12 तो कैंसिल हो जाएगा और 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। यू आर गेटिंग x इक्वल्स टू 4। तो अब राहुल और हरुण की एज मिल जाएगी। राहुल की एज क्या हुई 5x, तो 5 4 जा 20, और हरुण की एज हुई 7x यानी 7 4 जा 28। सिंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल्स टू 5x, तो 5 into 4 दैट इज 20 years राहुल की एज हुई। एंड सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ हरुण इज 7x, दैट इज 7 into 4 इज 28 years। समझ में आया, क्योंकि x की वैल्यू जो मिलती है वो सब रख देने हैं आपको, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। क्या पूछा था, किस तरह से क्या था, हर एक चीज समझ में आई होगी। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है, पहले पहले 9 को वापस समझना है, यू कैन गो बैक, रिवर्स करो, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, मेन चीजें समझो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशियो 7:5। देखो अब पहले क्या था, हरुण और राहुल की एज का बात थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको दिया हुआ है गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। क्लियर, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन, नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो लिखो लेट बॉयज बी 7x एंड गर्ल्स बी 5x। क्लियर, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में रेशियो 7x, तो बॉयज को मैंने 7x ले लिया, गर्ल्स को 5x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, 8 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज्यादा है, तो गर्ल कितनी है 5x, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8, यानी 7x इक्वल्स टू 5x प्लस 8। सिंपल। अब क्या करेंगे हम लोग, 5x को इस तरफ RHS में ले आएंगे, LHS साइड में ले आएंगे। सो आफ्टर ट्रांसपोजिंग 5x टू LHS वी गेट, अब 5x यहाँ पे प्लस में था
क्लियर। बट जब वो 5x RHS से LHS की तरफ आएगा तो यहाँ पे जब आएगा तो इट वुड बिकम -5x। तो 7x माइनस 5x कितना होता है 2x इक्वल्स टू 8। तो x कितना हो गया 8/2 दैट इज 4। देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8। सो 2x इक्वल्स टू 8। सो 2x इक्वल्स टू 8 हो गया। सो अब क्या, नाउ आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट, अब यहाँ पे 2x था तो 2 इधर है तो डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2x/2 इक्वल्स टू 8/2। सो x इक्वल्स टू 4। आपको x मिल गया। सो नंबर ऑफ बॉयज, टोटल क्लास स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज 7x प्लस 5x, यानी 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 मीन्स 28 प्लस 20 यानी 48, क्योंकि 7 4 कितना होता है 28 और 5 4 20, और x की वैल्यू हमको मिली यहाँ से। सो वी गेट टोटल क्लास स्ट्रेंथ दैट इज 48। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल क्लास स्ट्रेंथ, देयरफॉर टोटल क्लास स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 48। ये याद रखना है लास्ट स्टेटमेंट। देखो वर्ड प्रॉब्लम जब भी हो ना तो लास्ट स्टेटमेंट लिखना ना भूले, लास्ट स्टेटमेंट जरूर लिखो। वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, सो यू शुड राइट दैट लास्ट स्टेटमेंट। ये बाईचुंग्स फादर, क्वेश्चन नंबर 11, बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाईचुंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than बाईचुंग. The sum of the ages of the three is 135 years. What is the age of each of them? बोलोगे सर चाइनीज वाले मना कर रहे हो और चाइनीज का क्वेश्चन पूछ लिया, बाईचुंग बाईचुंग कर रहे हैं। देखो जो क्वेश्चन है, आप चाहे फिर बाईचुंग की जगह बजरंगी भाईजान लिख दो, फर्क क्या पड़ता है, नेम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप, ठीक है। सो देखो बाईचुंग फादर इज 26 years younger than बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बाईचुंग। देखो सिंपल सी बात है भाई, दादाजी पिताजी से बड़े होंगे, और जैसे सपोज मैं हूँ, आप हो या मैं हूँ, मेरे पापा मुझसे बड़े होंगे और मेरे दादाजी मेरे पापा से भी बड़े होंगे। तो ऐसा तो है नहीं, फिर ऐसा मत लिखना कोई एजेस ऐसे मत लिख देना कि पता चला कि आप आपके दादाजी से भी बड़े हो गए, ये चीज़ मत कर देना। जब भी प्रॉपर वे में आपको लेना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारी एज ही ले लेते हैं ताकि हमको पता चले। सो लेट बाईजुंग्स एज बी x years, कितना x। अब बाईजुंग के पापा कितने ईयर्स ओल्डर है बाईजुंग से, इट इज रिटन बाईजुंग्स फादर इज 29 years ओल्डर देन बाईजुंग, 29 years ओल्डर। सो 29 years ओल्डर है अगर, सो हम लोग लिख सकते हैं देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज ऑफ बाईजुंग्स फादर इक्वल्स टू x प्लस 29 year, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या बोला है, बाईजुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईजुंग्स ग्रैंडफादर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बाईजुंग्स के ग्रैंडफादर जो है उनके पापा से 26 years बड़े हैं। सो एज ऑफ बाईजुंग्स ग्रैंडफादर इक्वल्स टू x प्लस 29 प्लस 26, क्योंकि 26 years बड़े हैं तो प्लस 26 करेंगे। सो हमको तीनों की एज मिल गई एक बार, x प्लस 29, x प्लस 29 प्लस 26। अब तीनों का एडिशन क्या बोला हुआ है, ऑल द थ्री एडिशन इज 135, मीन्स आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम इक्वल्स टू एज ऑफ बाईजुंग्स, एज ऑफ फादर, एज ऑफ ग्रैंडफादर। सो x प्लस 29, x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल्स टू 135। अब देखो 1x 2x and 3x, so we will be adding all the three, that is 3x, and 29 plus 29 that is 58 plus 26 that is 84. So 3x plus 84 equals to 135. Now what we will do, we will transpose 84 over here, clear? So transposing 84 on the RHS we get, अब यहाँ पे plus 84 है तो इस तरफ क्या आ जाएगा minus 84. So 3x equals to 135 minus 84 that is equals to 51. 135 माइनस 84 वो आपको करना है, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं शो करूँगा, बट 51 क्लियर। सो 3x इक्वल्स टू 51 हमको मिल रहा है। सो वी आर डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 3 बिकॉज यहाँ पे 3x है, 3 इज इन मल्टीप्लिकेशन। अब तक तो सारे चीज़ क्लियर हो चुका होगा, इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो समझ में आ रहा होगा। सो 3x/3 इक्वल्स टू 51/3। सो x इक्वल्स टू यहाँ पे 3x/3 इक्वल्स टू 51/3। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1717, मीन्स बाईजुंग्स की एज जो हुई 17 years, क्लियर। बाईजुंग्स फादर एज इज 17 प्लस 29 दैट इज 46 years।
बाइजूस ग्रैंडफादर एज इज 46 प्लस 26 मीन 72 ईयर्स। तीनों की एजेस हमको मिल गई जो अभी की है 17, 46 एंड 72 ईयर्स। क्लियर? प्लीज राइटिंग के टाइम भी ध्यान दें, मिस्टेक ना हो जाए, नहीं तो आप आपके दादाजी से भी बड़े हो जाओगे, ऐसा करना नहीं है। क्लियर? सो होपफुली समझ में आ रहा होगा। समझ में आता है तो भी आप यू शुड कमेंट इट आउट कि हाँ आपने जो समझाया प्रॉपरली समझ में आ गया है और आई हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, ताकि आई कम टू नो कि यू आर गेटिंग इट और मुझे इसी तरह से समझाना चाहिए। इसमें और कोई चेंजेस है यू कैन टेल मी आउट, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? See, 15 years from now let Ravi's age be x, हम लोग x ले लेते हैं, assume कर लेते हैं x years। 15 years from now मतलब 15 साल बाद, so suppose after 50 according to the question ये लोग क्या बोल रहे हैं 15 years from now means x plus 15 होगा और क्या होगा it would be 4 times his present, मतलब 15 years बाद जो अभी की एज है उससे 4 गुना हो जाएगा, so 4x। आपका इक्वेशन ये बनेगा, फिर बाद में सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखते हैं। सो x plus 15 equals to 4x। अब हमको क्या करना है, इस x को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इस RHS साइड, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 15 इक्वल्स टू 4x माइनस x यानी 3x हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 15 इक्वल्स टू 3x। फिर क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग x टू द RHS, 15 इक्वल्स टू 4x माइनस x, सो 15 इक्वल्स टू 3x। अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दें। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 वी गेट 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3x अपॉन 3, सो x इक्वल्स टू 15। कैसे, x इक्वल्स टू 5, 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3x अपॉन 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो x इक्वल्स टू 5। क्लियर? x इक्वल्स टू 5, hence Ravi's current age is 5 years। by mistake टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियर? सो यू कैन गो विद Ravi's current age is 5 years, उसकी 5 years होगी। डिवीजन का ध्यान रखना है, x इक्वल्स टू 5 है यहाँ पे। क्लियर? 15 अपॉन 3 दैट इज 3 5 जा 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर? A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product you get minus 7 by 12. What is the number? अब रैशनल नंबर कौन सा हमें नहीं पता है, तो लेट द रैशनल नंबर भी a, हम लोग ले लेते हैं a। अब इन्होंने क्या है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 2 एंड एड 2 by 3, मतलब a को हम लोग 5 by 2 से मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर 2 by 3 ऐड करें, तो आंसर क्या आता है माइनस 7 by 12। सो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट गेट द इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट a इंटू 5 by 2 प्लस 2 by 3 इक्वल्स टू माइनस 7 by 12। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 by 3 बोथ द साइड वी गेट, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, a 5 by 2 प्लस 2 by 3 माइनस 2 by 3 माइनस 7 by 12 माइनस 2 by 3, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 7 अपॉन 12 माइनस 2/3। एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम आपको आता होगा, नहीं आता है तो एलसीएम का मतलब होता है दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 ला सकते हैं क्या, यस, 4 3 जा 12। सो व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ द साइड, ऊपर और नीचे, मतलब बोथ द साइड मतलब दोनों डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में। सो माइनस 7 माइनस 8 अपॉन 12, दोनों में 12 कॉमन हो जाएगा, दैट वी विल गेट माइनस 15 अपॉन 12। सो यही चीज़ आपको इधर करनी है, a इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 8 अपॉन 12। सो a 5 अपॉन 12 इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 12। अब क्या करना है, यू शुड मल्टीप्लाई बाई 2, जो भी आपको मिला इसमें यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 2 बोथ द साइड वी गेट, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a इंटू 5 बाई 2 2 इंटू माइनस 5 बाई 4, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो माइनस 5 बाई 2। सो 5a इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2। नाउ अब क्या करना है, हमको 5a से डिवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ बाय डिवाइडिंग 5 बोथ द साइड, नाउ बाय डिवाइडिंग 5 बोथ द साइड वी गेट 5a अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 5। यहाँ पे क्या होगा, 5 5 कैंसिल, ये भी 5 5 कैंसिल, तो a इक्वल्स टू आपका आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। सो
ए इक्वल्स टू -1/2, देयरफॉर द नंबर इज -1/2। मतलब जो रैशनल नंबर हमको चाहिए था दैट इज -1/2। -1/2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करें, और वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट आई एम टेलिंग कि -1/2 जो है हमको मिला, उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करें और 2/3 ऐड करें तो हमको आंसर मिलेगा -7/12। इफ़ यू विश यू कैन ट्राई ऑल्सो, रैशनल नंबर ही है तो आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था रैशनल नंबर कैसे सॉल्व करना है, तो वो चीज़ तो अब आपको आ जानी चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. मीन्स उस लक्ष्मी कैशियर है, उसके पास 3 अलग अलग टाइप की नोट्स हैं। 100 रुपये की नोट है, 50 रुपये की नोट है, 10 रुपीज़ की नोट है रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5। रेशियो उन्होंने दिया हुआ है 2:3:5। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज ₹4 लाख। 4 लाख उसके पास है। हाउ मेनी नोट्स ईच ऑफ द डिनोमिनेशन इज देयर। ठीक है, देखो नॉर्मली उन्होंने बोला रेशियो कि इतनी रेशियो में है, तो मैं बोल सकता हूँ 2x की 100 रुपीज़ की नोट, 3x 50 रुपीज़ की नोट और 5x 10 रुपीज़ की नोट, और सबका टोटल प्राइस दी हुई 4 लाख रुपीज़। मीन्स 2x अगर 100 रुपीज़ की नोट है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, प्लस 3x अगर 50 रुपीज़ की नोट है तो मल्टीप्लाई बाय 50 करना पड़ेगा, प्लस 5x अगर 10 रुपीज़ की नोट है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो जाके सबका आंसर क्या आएगा 4 लाख। ऑब्वियसली बात है, जितनी नोट्स है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि 100 रुपीज़ की नोट सपोज एक है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1 × 100 दैट इज 100, प्लस बाकी सारी नोट्स को ऐड करेंगे प्राइस को, तो जाके 4 लाख रुपीज़ होंगे। सो सेम हियर, सिंस द रेशियो ऑफ करेंसी नोट इज 2:3:5, देयरफॉर let the number of currency notes of ₹100, ₹50 and ₹10 be 2x, 3x and 5x respectively। क्योंकि रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग वही ले सकते हैं। Hence according to the question, equation becomes, अब क्या कर रहे हैं 100 × 2x। आपका इक्वेशन ध्यान रखना, क्योंकि 100 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्योंकि इतनी नोट्स है, फिर 50 को 3x क्योंकि इतनी नोट्स है, प्लस 10 × 5x क्योंकि 10 रुपीज़ की इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, सो ये आएगा, इक्वेशन बिकम्स 100 × 2x प्लस 50 × 3x प्लस 10 × 5x इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज़। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख। तीनों का एडिशन करो, 200 प्लस 150 प्लस 50 इक्वल्स टू आंसर आएगा 400। So 400x equals to 4 lakh. Now dividing both the side by 400 we get x equals to 1000। Obviously बात है 400x upon 400 करोगे और 4 लाख, 2 0 नीचे लगा रहा हूँ साथ में ही है, अपॉन 400, तो ये तो कैंसिल हो गया तो x आ गया, इसके 2 0 कैंसिल और 4000 जा, सो x equals to 1000 आया। मीन्स therefore number of 100 rupees notes equals to 2x equals to 2000 notes, number of 50 rupees notes that is 3x equals to 3000 notes, number of 10 rupees note equals to 5x यानी 5000 notes। इतनी notes होगी, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन कैलकुलेट, सी कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल है। जस्ट क्या करना है, 2000 रुपीज़ मतलब 2000 नोट्स है 100 की, तो मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज यू विल गेट 2 लाख। फिर 3000 नोट्स है 50 की, सो यू विल गेट 1.5 लाख। और 5000 नोट्स है 10 रुपीज़ की, 5000 नोट है 10 रुपीज़ की, सो यू विल गेट 50,000। और तीनों का एडिशन अगर हम करते हैं तो यू विल गेट 4 लाख रुपीज़। क्लियर? सो दिस इज, कोई बोलेगा सर इतना ही दे दो, भाई हम देने के लिए नहीं, हम समझाने के लिए हैं। सो देना लेना छोड़ो, आगे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव टोटल ऑफ ₹300 coins of denomination ₹1, 2 and 5. The number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupee coin. The total number of coin is 160. How many coins of each denomination are with me? पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बंदे के पास ₹300 पूरे हैं, क्लियर, जिसके अंदर
1 रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन और 3 रुपी के कॉइन है। या सपोज हम लोग ले लेते हैं, इन्होंने क्या बोला, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो सपोज 5 रुपी का कॉइन अगर हम लोग लेते हैं x, तो 2 रुपी का कॉइन हो जाएगा 3x। क्लियर? 5 रुपी कॉइन अगर x है तो 2 रुपी कॉइन 3x होगा। सो नाउ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160 दिया हुआ है। सो अगर हमको पता नहीं 1 का कॉइन कितना है, हम लोग उसको ले लेते हैं y। सो y प्लस 3x प्लस x इक्वल्स टू 160। ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। सो y प्लस 4x इक्वल्स टू 160। तो y हमको मिला 160 माइनस 4x, यानी 1 रुपी के कॉइन कितने हुए, 160 माइनस 4x। तो यही चीज हमको करनी है। लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन बी y एंड द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन बी x। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अगर 5 के x है तो 2 रुपी के कॉइन कितने हुए, 3x। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन विल बी 3x। ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। अगर 160 टोटल है तो y प्लस x प्लस 3x इक्वल्स टू 160। सो y इक्वल्स टू y प्लस 4x इक्वल्स टू 160। सो y इक्वल्स टू 160 माइनस 4x, मतलब 1 रुपी के कॉइन हमको मिलेंगे इसमें। सो y प्लस x प्लस 3x इक्वल्स टू 160। सो y प्लस 4x इक्वल्स टू 160। नाउ ट्रांसपोजिंग 4x टू RHS, ट्रांसपोजिंग बोलो, ट्रांसपोर्टिंग बोलो, 4x को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू 160 माइनस 4x। देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन इक्वल्स टू 160 माइनस 4x। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ओके। सो अब क्या, अब आपके पास 1 रुपी के कॉइन हो गए, 2 रुपी के कॉइन हो गए, 5 रुपी के कॉइन हो गए, टोटल रुपीज उन्होंने बोले 300। तो जितने 5 रुपी के कॉइन, सपोज x इंटू 5 प्लस 2 रुपी के कॉइन 3x तो इंटू 2, 1 रुपी के कॉइन 160 माइनस 4x इंटू 1 इक्वल्स टू 300 होंगे। सबका एडिशन ऑब्वियस ही बात है ना। देखो मेरे पास अगर 10 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 कॉइन्स आई हैव 5 रुपीज, तो 10 इंटू 5 मेरा 50 रुपीज होते हैं। सो उस तरह से जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 तो करना पड़ेगा ना। सो नाउ इट इज गिवन दैट टोटल अमाउंट इज रुपीज 300। सो 1 इंटू 160 माइनस 4x, क्योंकि 1 रुपी के कॉइन कितने हैं, 160 माइनस 4x, प्लस 2 रुपी के कॉइन 3x है तो 2 इंटू 3x प्लस 5 इंटू x इक्वल्स टू 300। ब्रैकेट ओपन करो। सो 160 माइनस 4x प्लस 2 3 आर 6x प्लस 5x इक्वल्स टू 300। अब देखो 5x प्लस 6x यानी 11x माइनस 4x यानी हो गया हमारा 7x। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर आएगा 160 प्लस 7x इक्वल्स टू 300। सो 160 प्लस 7x इक्वल्स टू 300। अब क्या करेंगे, 160 को ट्रांसपोज करेंगे 300 के साइड, तो ट्रांसपोजिंग 160 टू RHS, 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160 इक्वल्स टू 140। नाउ डिवाइडिंग, अब देखो 7x है तो 7 मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, सो वी विल बी डिवाइडिंग विद 7। Dividing both side by 7 we get 7x upon 7 equals to 140 upon 7। तो x equals to 20, क्योंकि 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, so 7 20 40। सो आपको x मिल गया। Thus number of 1 rupee coin equals to 160 minus 4x, 160 minus 80, 420 is 80, so this is 80। Number of 2 rupee coin that is 3x equals to 60। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन x इक्वल्स टू 20। तो ये सारे नंबर ऑफ कॉइन्स पता चल गए कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कितने हैं। क्लियर? समझ में आया? नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन का लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। The organizer of an essay competition decides that a winner in a competition gets ₹100 rupees prize and a particular who does not win gets ₹25। जो नहीं जीतेगा उसको भी 25 रुपीज मिलेंगे और जो जीतेगा उसको 100 रुपीज मिलेंगे। तो एटलीस्ट पार्टिसिपेंट करना है, एटलीस्ट पार्टिसिपेंट हो जाना। 25 रुपये 25 रुपीज तो फाइनल है आपके। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। ठीक है? लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x।
सो नंबर ऑफ लूजर्स या जो जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स किया जो जीते नहीं, दे आर 63 माइनस 1. लूजर नहीं बोलूंगा, दोज पार्टिसिपेटेड हु डू नॉट विन. देखो वो लूजर नहीं बोलते हैं, लेकिन जीते नहीं, जस्ट दे आर नोन एज 63 माइनस 1 to x winners and 63 minus x are those who didn't win the competition, जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया पर जीते नहीं. क्लियर. नाउ टोटल देखो जो जीते थे मीन्स विनर गॉट 100, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 इंटू एक्स, एंड जो नहीं जीते उनको 25, सो प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स. टोटल प्राइस कितना है डिस्ट्रीब्यूशन 3000. तो इस तरह से कुछ आएगा. सो लेट अस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बिकम्स x into 100 plus 63 minus x into 25 equals to 3000. So 100x plus 25 into 63 करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. मैंने डायरेक्ट आंसर फाइंड किया, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट. दैट इज 1575 minus 25x equals to 3000. मैंने 25 को पहले 63 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 25 को x के साथ मल्टीप्लाई किया. नाउ व्हाट वी विल डू, 75x plus 1575 equals to 3000 because 100 minus 25 is 75x. अब इसको इस तरफ RHS साइड में, so transposing 1575 to the RHS we get 75x equals to 3000 minus 1575 equals to 75x equals to 1425. ठीक है. अब यहाँ पे 75x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, so we will be dividing 75x by, मतलब दोनों साइड में 75 से डिवाइड करेंगे. So dividing both sides by 75 we get 75x upon 75 equals to 1425 upon 75. So x equals to 19. आपको डिवीजन करना होगा. डिवीजन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1425. 75 ones are 75. Clear. You will get 7675. So 75 into 9 that is 675. ये आप करना है कैलकुलेट, तो आपको मिलेगा. Clear. Therefore the number of winners equals to 19. तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स जो थे कंपटीशन में कितने थे, 19 विनर्स थे. क्लियर. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी है, यू कैन कमेंट इन द डाउट सेक्शन, आस्क द डाउट, गेट द सॉल्यूशन. और हमेशा कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, व्हाटएवर, यू हैव टू प्रैक्टिस इट हार्ड, ताकि आप इजीली कर सके. बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट आउट. थैंक यू वेरी मच.